Welcome to $1 IAS. $1, one dream IAS. Good morning, everybody. Welcome to $1 IAS, your one-stop solution for your IAS preparation. Okay, so you need not to go anywhere. No need to follow any classes. Just focus with us. Whatever I am teaching, whatever I will teach, our team will teach you. You just need to focus. Okay. So it is a one-stop solution for your IAS preparation. So today is your polity class, and today I am going to teach you fundamental rights, FRs. Okay. So now let's start. Okay. So hello. Welcome to $1 Welcome to $1 IAS. $1, one dream. And that dream is to become IAS officer. Okay. That dream is to become IAS officer. Together we will go and we will crack UPSC 2024. This is our target. Okay. ये हमेशा याद रखना. ओके, कि यही है हमारा टारगेट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट टुडे? सो टुडे वी विल स्टार्ट with today we will start with fundamental rights. Okay, fundamental rights, FR, that is mentioned in part 3 of Indian Constitution. Okay, part 3 of Indian Constitution. So what is the origin of the fundamental rights? Origin of FRs. Origin of FRs. By the way, this FR and DPSP both combined together and they are known as the conscience of the Constitution. हमारे Constitution की जान है, gone. Fundamental rights and DPSP. Okay, they are the conscience of the Constitution. Okay, chalo. So origin of the fundamental rights. So it was USA was the first company. USA was the first country who included fundamental rights. Where? USA in USA. Okay, USA was the first country. When? In around 1789. How? Now the question arises, it's not about how, किस तरह से USA ने include किया था. So actually what happened in USA? In USA there were 10 amendments. In 1791 there were 10 amendments in USA constitutions. How many? 10 amendments. 10 amendments. Okay, in USA constitutions. USA के constitution में 10 तरह के amendment हुए थे. Okay, और इसी से हर amendment से, with each amendment there is emergence of one fundamental rights, and they are known as Bill of Rights. इन्हें क्या कहते हैं? Bill of Rights. And from here India borrowed the concept of fundamental right. Our fundamental right, हमारा भारत का fundamental right of India, FRs of India, ये यहाँ से आया. ठीक है? Okay, got my point? चलो. So from where we brought this fundamental right concept? We brought this fundamental right concept from USA. And USA there were 10 amendments. Okay, so why fundamental rights are known as fundamental rights? Why fundamental? Why fundamental? इन्हें fundamental rights ही क्यों कहते हैं? ये बताइए. Why? Because they are basic in character. Like when I say atom is the fundamental part of our body. Fundamental means basic part of our body. So if fundamental is basic, then basic is fundamental. Okay, so fundamental rights are fundamental because they are
basic in character. They are basic rights. What rights are they? They are basic right. Okay. Now, why they are called fundamental? Why they are called basic right? क्यों कहते हैं इसे? So because of two reasons. दो रीज़न की वजह से. Because of two reasons. Okay. दो रीजन्स. वो दो रीज़न कौन से? वो दो रीज़न कौन से हैं? ओके. सो दे प्रोवाइड यू एन ओपन एनवायरनमेंट. ये आपको ओपन एनवायरनमेंट देते हैं ताकि आप फुल्ली ग्रो कर सकें. किस तरह से? फिज़िकली आप ग्रो कर सकें. ओके. फिज़िकली आप ग्रो कर सकें. अगर आप देखें तो आप स्पिरिचुअली, you can grow spiritually. Okay, you can grow spiritually and wait. You can even grow spiritually and physically. Spiritually, physically आप पूरी तरह से ग्रो कर चुके हैं. Intellectually. Okay. Like before independence, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, there was no constitution. Okay, so what happened? There were caste discrimination. Now legally it is, what happened? Legally we can say that you are not following rights. So ये अब ख़त्म हो गया. Okay, but extreme नहीं जाएंगे, but okay, you can understand. तो अब जो है कि before the arrival of constitution ऐसा नहीं था. Now अब constitution आ चुका है. So if somebody is coming from a lower caste family, so he can grow. Nobody is there to counter him that you are belonging from that caste, so you are required to do that work only. Okay, this what nobody can say. Okay, ये तो हो गया. तो physically, spiritually, intellectually you have the right to grow fully. First, that is why they are known as fundamental right. Fundamental, जब आपने देखा कोई बिल्डिंग ब्लॉक है उसी पे सारा फॉर्मेशन होगा. लाइक इफ देयर इज एटम के बाद ही मॉलिक्यूल आएगा. तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट ज़रूरी है. एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल. तो जिस तरह से बढ़ोतरी होगा इसी तरह से आएगा. ओके, सो इसलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट. ओके. सेकंड, दे आर एसेंशियल फॉर व्हाट? फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है. डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है. दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर democracy, because our democracy will say each one have one vote, no matter which caste you are belonging, which religion you are belonging, you have only one vote. Okay, so it is essential for functioning of democracy. If you are a democratic society, then there need to have fundamental right. Okay, so in दो reason की वजह से we are saying that they are fundamental. डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई ग्रो ही नहीं कर पाएगा. then what is the need of डेमोक्रेसी? ठीक है, तो फंडामेंटेड बाय. ओके, सो योर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज. राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? लॉ है. इंडिया में क्या, कहीं भी हर जगह लॉ है. राइट तभी तुम्हारा प्रोटेक्ट होता है. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से राइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. लीगल राइट्स, ओके, एंड देयर इज ऑल्सो नॉन लीगल राइट्स. नॉन लीगल इसे बढ़ा दो क्या? आप लोग कमेंट्स में लिखा कीजिए. non-legal rights. Legal rights and non-legal rights. Non-legal rights are also known as moral rights. Non-legal rights को moral rights भी कहते हैं. So why legal rights? Why legal rights? Okay. So there are three characteristics of legal rights. First, they are in public domain. They are in public domain में. Okay, so that is why there is legal backing है. If you are violating such law, so then you can be punished.
Okay, you will be punished. Okay, there is legal backing in the court of law. They are in the public domain. Okay, if you are violating those rights, then you can be punished in the court of law. Non-legal rights or moral rights, like दादाजी को रेस्पेक्ट करना है, मम्मी पापा के पैर छूने हैं, so there is no legal backing, but you are doing because you love your family, you respect your family, so they are in the private domain. They are in private domain. No legal backing, कोई legal backing नहीं है. No legal backing is there. कोई legal backing नहीं है. आप बस कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं. Okay, so there are two types of right. First is legal and the second one is non-legal or moral rights. Legal rights are protected by the law. They are in the public domain, and non-legal rights are in the private domain. Okay, and if you are violating the legal right, then you can be punished, and non-legal rights you are not punished. Okay, third, legal rights are enforceable. इसको enforce किया जा सकता है. They are not enforceable. Okay, okay. Now, so अब हम किसे पढ़ेंगे? As a political science student, we are going to study legal rights. हम legal rights को ही पढ़ेंगे. Okay, so now let's read about legal rights. Legal rights को पढ़ते हैं. Okay, so legal rights are again divided into two parts. ये भी दो भाग में डिवाइड है. First is constitutional rights. Okay, that are found in the constitution. Okay, चलो ये पूरा ही डिलीट हो गया. लीगल. ओके, वाइट अच्छा लगेगा. ओके, सो legal rights. Legal rights are again divided into two parts. Okay, legal rights are again divided into two parts. First is constitutional rights. Constitutional rights that are found in the Constitution of India. Okay, and constitutional right found in the Constitution. कहाँ मिलता है ये? COI मतलब Constitution of India. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए बोलते हैं. दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, और इसे और क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ओके, that are found in the Constitution. Okay, so now again, constitutional right. Your constitutional right is again divided into two parts. Constitutional, ये मज़ा है ना, से पढ़ाने में ये रंग अच्छा लग रहा. Constitutional rights are again divided into two parts. Fundamental rights. Okay, and the second, other constitutional rights. Okay, जब मैंने बोला कि there is a legal right means there is legal backing. Okay, फिर मैंने बोला constitutional right found in the constitution, and मैंने बोला non constitutional right that are not found in the constitution. इसका एग्जाम्पल आपके पास कोविड प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा था, बट ऑल राइट आर कन्फर्मिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ओके, इसका एग्जांपल लिख लीजिए. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, कोविड प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट दे आर कन्फर्मिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, सो इसलिए इसे कहेंगे ये. चलो, फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका. अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट.
अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपका ज़्यादातर एग्जाम्पल हो जाता है स्टैट्यूटरी राइट. स्टैट्यूटरी राइट्स. Statutory rights means they are made by the Parliament of India. CA, okay. Right to property, fundamental right. Fundamental right को छोड़ा के बाकी सारा right, okay, is known as other constitutional. So non-constitutional, other constitutional, extra constitutional right. Okay, this is clear. Okay. So, what is the difference between fundamental rights and other constitutional rights? For fundamental rights, you can directly go where? You can directly go to the Supreme Court. You can directly approach the Supreme Court. Okay, that if there is violation of the fundamental right. But in case of other constitutional right, you cannot directly go to the Supreme Court. You first go subordinate court. देन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वाई यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. वाई ऐसा क्यों है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? यू विल से कि लॉ बैक कर रहा है. ये कोई जवाब नहीं. ओके कि लॉ बैक कर रहा है, दैट इज़ वाई आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. नो, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. व्हाट डिड आई से? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली हैम्परिंग द डेमोक्रेसी. Your fabric structure of democracy is directly hampered if the fundamental right is violated. You do not have right to speak. Then do you call it a democratic state? No, it will be a totalitarian state. Why democratic state? So it is directly hampering you. That is why it is known as you can directly go to the Supreme Court. That is why they are known as fundamental. मैंने पहले ही मैं क्या बताया इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं? डेमोक्रेसी पे, ठीक है, डायरेक्ट अफेक्ट होता है अगर इफ समबडी इज. चलो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, फिर ये होते होते यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके, चलो नाउ लाइक यू हैव अदर राइट्स ऑल्सो, ह्यूमन राइट्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मैन? मैन एंड ह्यूमन के बीच में अंतर क्या है? ओके, मैन. सो मैन इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी एंड ह्यूमन इज अ सोशल एंटिटी. ओके, सो मैन इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी एंड ह्यूमन इज अ सोशल आइडेंटिटी. If I am saying you are a social identity being, means you have rights with responsibility. Rights with responsibility. Responsibility. Chalo. You have rights. Now you are a biological being. Biological entity. Okay. You are a biological entity. Then you are a social entity, rights with responsibility. Okay, so that is why you have human right and natural right, which we will study in detail. Okay, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इस वजह से अब हमारे पास ह्यूमन राइट भी है और ह्यूमन राइट का वायलेशन होने पे भी सज़ा है. ओके, चलो वेट. Okay. Okay, there are certain rights. There are certain rights which are not given constitutional status. There are certain rights. Okay. So as a human, you have human rights. Human right. Okay. Okay. Got my point? चलो. तो इसलिए human right भी है. So there are certain rights which are not fundamental, which are not right in India. Like in case of right to statehood. Wait. Right to statehood. Right to
स्टेटहुड. ओके, लेट मी गो. अब सही है. राइट टू statehood is not a right in India. What is right to statehood? Means state has the right, okay, to separate itself from the center. लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में. ठीक है, तो राइट टू स्टेटहुड, बट इट इज देयर इन यूएसए. ओके, चलो. सो स्टेट का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज स्टेट? Let me go. Yeah, now it's fine. Okay. So, state. State लीगल फंक्शन होता है, फेडरल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस होता है. स्टेट में क्या क्या होता है? लीगल, फेडरल एंड administrative. Legal, federal and administrative. Legal means, what is legal? Legal means it is a sovereign body. What it is? It's a sovereign independent body. Okay, sovereign body. Okay. Federal means there is distribution of power between center and state. Federal structure is there. Okay. Now, there is not a centralization of power. Then in administrative sense, okay, administrative sense means any authority that is executing, और गवर्निंग द फंक्शन. ओके, तो एक लीगल है, सोवरेन बॉडी है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है, तब वो स्टेट है. और वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है. फेडरल मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक देयर इज महाराष्ट्र. ओके, और फिर उसके बाद क्या है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस है, मीन्स वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी है. तो ये तीनों चीज़ मिला करके तुम्हारा क्या बनाता है कि स्टेट बनाता है. ठीक है, स्टेट में 3 फंक्शन है. नाउ अगर सॉवरेन नहीं है तो फिर स्टेट कैसा है? सो इफ यू लुक फॉर जुडिशरी, सो जुडिशरी समटाइम्स फंक्शन एज अ स्टेट. जुडिशरी समटाइम्स, not always, but judiciary sometimes functions as a state. What? जुडिशरी कभी कभी फंक्शन करता है किसके जैसा? स्टेट के जैसा कभी कभी फंक्शन करता है. हाउ? अगर आप देखेंगे, मैंने स्टेट का 3 फंक्शन बताया. लीगल, सोवरेन बॉडी है. So is judiciary a sovereign body? Of course, judiciary is a sovereign body. Judiciary is sovereign. Sovereign body. इसके ऊपर कोई नहीं, इंडिपेंडेंट है. ठीक है. Now, federal, there is distribution of power. Supreme Court and High Court, they are at par with one another. Then subordinate court. Okay, subordinate court and executive function. So you will say, कि ये तो लॉ बनाता नहीं है. कहाँ लिखा है ये लॉ बनाता है? But sometimes judiciary also pronounce statements that worked as a law, that are working as a law. कौन सा? विशाखा गाइडलाइंस. Okay, executing judicial activism इन केस ऑफ राम मंदिर. ओके, जो हम जुडिशरी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो इट इज एग्जीक्यूटिंग लॉ ऑल्सो. एग्जीक्यूटिंग लॉ, जुडिशियल एक्टिविज्म, विशाखा गाइडलाइंस. ओके, सो समटाइम जुडिशरी ऑल्सो वर्क्स एज अ स्टेट. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. कभी कभी जुडिशरी भी स्टेट के जैसा वर्क करता है. उसके पास अपना लीगल फ्रेमवर्क है, सोवरेन बॉडी है,
legal. It's legal. There is distribution of power, federal structure. How? If you look for Supreme Court, High Court and subordinate court. Subordinate court. Subordinate court. Now executive. It is also executing law. Where? In case of judicial activism. Where? Judicial activism. So it is working as a state. Okay? Okay. Now, nature of fundamental rights. फंडामेंटल राइट का क्या नेचर है? कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफआरस. फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट आर इंजॉयड बाय द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल इसको एंजॉय करते हैं. इट इज enjoyed by individual. It is enjoyed by individual. Okay. It is enforceable. It is enforceable. Enforceable against whom? Against state. स्टेट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेट ये काम करेगा. ओके. अनटचेबिलिटी हटाएगा, कौन हटाएगा? स्टेट. स्टेट विल मेक लॉ. ओके. ऐसा थोड़ी ही कि लॉ बन गया सब अब फॉलो करना बंद कर देंगे. अनटचेबिलिटी, देयर मस्ट बी अ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट, सो स्टेट विल डू. ओके. सो इट इज जनरली ओके, बट sometimes it is also enforceable against individual. Enforceable generally. Sometimes it is also enforceable against individual. Individual के खिलाफ भी होता है. How, when, why, कब, क्यों, कैसे. In case of untouchability. Untouchability. Untouchability में okay, because private मतलब we humans are also practicing untouchability. That is why it is against us also. हमारे खिलाफ भी है untouchability. Okay. Okay. So it is against an individual. Right to freedom of movement. Freedom of movement. भाई स्टेट ने कह दिया you are allowed to freely move anywhere, but if somebody is telling you no, you are not allowed to stay in that state, so he is compromising with your right to freedom of movement. So it is against you also. You will be punished. So it is also against state and against individual. Okay. So generally you will say that fundamental rights, let me try this also. ये भी काफ़ी अच्छा कलर है. ओके. सो फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव ऑब्लिगेशन. निगेटिव ऑब्लिगेशन. निगेटिव ऑब्लिगेशन अगेंस्ट स्टेट. निगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के खिलाफ. स्टेट ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. फंडामेंटल राइट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट. By doing this, state cannot do this. So it is limiting. It is limiting. Limiting the. It is limiting the power of. ये सही position है. It is limiting the power of state. स्टेट के पावर को लिमिट किया जा रहा है फंडामेंटल राइट के जरिए. ठीक है कि स्टेट का नॉट स्टेट मतलब भैया. ठीक है. बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट.
फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट है तो ऐसा थोड़ा कि तुम मूव करते करते DRDO में एंटर कर जाओगे, नहीं ना। वाई? बिकॉज योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। इफ़ यू हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सो यू कैन नॉट गो टू द अंडमान। अंडमान में बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, यू कैन नॉट गो देयर बिकॉज सेंटिनलीज आर लिविंग देयर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूटेड, एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ओके, नॉट एब्सोल्यूट। देयर कैन बी restricted rights. There can be restricted rights in case of emergency, और भी बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में और भी अलग अलग टाइम में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आप पे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? किसके ग्राउंड पे आप मेरे पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। इफ इट इज कंपेलिंग विद द सोविरेनिटी ऑफ इंडिया, सोविरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सोविरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, कहीं रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप जा रहे हैं वहाँ, तो ठीक है। सोविरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, सोविरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि ट्रैवल करके जिसके वजह से मामला ख़राब हो सकता है, सो यू कैन बी restriction can be put against you, okay. In case of friendly relation with other nation, so you have right to speech, so you cannot say that this religion, that religion or that caste is bad because it is compromising with the integrity of India. You cannot abuse a state with whom India has cordial relation, ठीक है, आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस आता है। सेकंड डी, इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी के खिलाफ, इन इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड ST, भाई जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। PCDEF, ओके, F, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ऐसा थोड़ी है कि इमरजेंसी लगा फिर भी आप जाएंगे, ठीक है, आपके पास मूव करने का राइट है, बट ऐसा नहीं, ठीक है। तो वेट, हाँ, इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यू कैन नॉट गो, ठीक है। डिसेंसी, मोरालिटी, डिसेंसी, मोरालिटी, डिसेंसी, मोरालिटी, ओके। जी, वेलफेयर ऑफ वुमेन चिल्ड्रन, welfare of women, children and weaker section, weaker section. So these fundamental rights are not absolute. इन सारे ग्राउंड पे आप पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के साथ इफ़ यू आर कंप्रोमाइजिंग, आपके किसी बात के कहने से इंडिया की सोवरेनिटी हर्ट होती है, इंटीग्रिटी हर्ट होती है, फ्रेंडली रिलेशन ख़राब हो जाता है, पीस स्टेबिलिटी पर सवाल उठ जाते हैं, SCs ST में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। सो इन केस में देयर कैन बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी पुट अगेंस्ट यू, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लेंदी चैप्टर है,
ओके ओके, और भी कुछ कंडीशन है। ओके, फॉर प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लास, देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, ठीक है। सो ऑल दीज ग्राउंड्स जो मैंने डिस्कस किया, ओके, सो दे आर इम्पोज्ड बाय द स्टेट, they are reasonable. Okay, and judiciary will check whether it is reasonable or not, because judiciary has the right to check whether this right is conforming with the constitution or not. ऐसा थोड़ी कि स्टेट आज उठा और बोला कि आपको वहाँ जाने अलाउ नहीं है, जुडिशरी बताएगा कि हाँ आपने जो राइट बनाया है वो सही है या नहीं। ओके, ये रहा। नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से, इन्फोर्सिबिलिटी, चलो सही कर लेना, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से, लो इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है। इन्फोर्स करने के हिसाब से, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट, ठीक है। सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट, सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स, ओके। दूसरा है नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या? अब बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर मुझे बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत है तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। छोड़ो, अब से इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा। नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट, दोज आर कैपेबल ऑफ इन्फोर्समेंट, ओके, बाय देमसेल्फ, दे डोंट नीड अ सब्सिक्वेंट अथॉरिटी टू इम्पोज। वो खुद में है, खुद ब खुद इम्पोज होते हैं, लाइक राइट टू वोट। आप 18 साल के हुए, नाउ यू हैव द राइट, इसके लिए कोई अलग से लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी, इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग, ओके, अनटचेबिलिटी, तो उसके लिए ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड। बट what if somebody is practicing untouchability? So there need to have a law that will punish you if you practice untouchability, okay. So they are generally known as complete law, ये complete है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, हर कोई इक्वल है, इसके लिए कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इक्वल है, ओके। नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव लाइक अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, untouchability, constitution prohibits any kind of untouchability, okay. But what if somebody is practicing untouchability? But we have seen in case of COVID, there was untouchability that was practiced, because it is again why untouchability practiced. This can be the question कि during COVID protocol we practice untouchability. Please write your view, क्या लिखोगे इसमें? Because it is compromising with the right to life. किसी को छूने से you can get affected. So right to life वहाँ पे compromise हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण्स लोअर कास्ट को छुएं तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ओके। बट इन केस ऑफ कोविड, योर राइट टू लाइफ was at stake. That is why it was allowed, okay. So it can be the question. So Article 17 that prohibits any type of untouchability based on caste, creed, gender. कि वो विधवा है, उसे नहीं छूना है, उसका परछाई मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए, शी इज़ अ विडोड वूमेन, सो हर परछाई, शैडो शुड नॉट रीच टू मी। सो इस तरह का कोई भी नहीं, ओके। सो इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग, सो दे नीड टू हैव अ
अच्छा, जनरली दीज आर नोन एज इनकम्प्लीट। अच्छा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, ठीक है। इनकम्प्लीट फंडामेंटल राइट्स कि अगर ये है तो ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनकम्प्लीट फंडामेंटल राइट। ओके, इसीलिए हम क्या लेकर के आए, सिविल राइट प्रोटेक्शन, सिविल राइट प्रोटेक्शन, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ लाइक डीपीएसपी में एक राइट था, राइट टू एजुकेशन। लाइक राइट टू एजुकेशन आया तो वो तो स्टार्टिंग में डीपीएसपी से लिया। तो आप देखेंगे कि क्या था कि राइट टू एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट, बट इफ राइट टू एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट देन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एजुकेशन। ठीक है, आपके पास राइट है, यू हैव द राइट टू गेट एजुकेशन, सो देयर मस्ट बी अ लॉ दैट विल प्रोवाइड यू। तो फिर क्या आया, आर्टिकल 21 का ए भी इम्प्लीमेंटेड, और फिर उसमें कि हर किसी को एटलीस्ट राइट है एक बेसिक एजुकेशन का। ठीक है, चलो, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिक हो रहा है तो उसके लिए भी एक लॉ है, यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरह का ये इनकम्प्लीट फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी इन्फोर्समेंट, in term of enforcement there are two types of right. First is self executive fundamental right, that they are complete right to equality, हर कोई इक्वल है, इसके लिए लॉ लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट, इनकम्प्लीट फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 17 में है, लाइक अनटचेबिलिटी, उसके लिए राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट लाए। राइट टू एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट, देयरफॉर वी केम विद आर्टिकल 21A अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा है, सो इसके लिए भी एक लॉ लेकर के, ट्रैफिकिंग इज़ नॉट अलाउड, बट इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग ट्रैफिकिंग, इज इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग, तो उसके लिए लॉ लाने की ज़रूरत है। चलो, ये हो गया। इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, चलो अब बड़ा बड़ा लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से फंडामेंटल राइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Some rights are given to citizens only and some rights are not given. Some rights are enjoyed whenever we say ना, कुछ right हम enjoy करते हैं, and some rights are not enjoyed by the citizen or they are non-citizens. Okay, so we enjoy all fundamental rights, all for सब चीज़ हमारे ही लिए। ओके, नाउ ये भी इंजॉय करते हैं ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, अब एक्सेप्शन पे बात करते हैं। एक्सेप्ट येलो, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 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 आर्टिकल, ये नहीं इंजॉय करते। आर्टिकल 15 एक मूवी था, ओके, आयुष्मान खुराना का, आपने देखा होगा कि नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट यू बेस्ड ऑन योर कास्ट, क्रीड, जेंडर। ओके, सो डू वी डिस्क्रिमिनेट देम? या ऑफ कोर्स वी डिस्क्रिमिनेट देम बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। कहीं भी आप जाइए, आप देखेंगे, जैसे अगर आप लाल किला घूमने जाएं, आप ताजमहल घूमने जाएं, तो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट वी विल डू, वी विल चार्ज। ओके, सो आर्टिकल 15, या आप, या अगर लुक, अगर मैं आपको पॉलिटी इस हिसाब से पढ़ाऊँ, यू नो, कि ये राइट है, ये नहीं राइट है, बट आई एम गिविंग यू परफेक्ट एग्जाम्पल, यू कैन रिलेट। लाइक व्हाट डिड आई से इन द फर्स्ट क्लास, you know, you just behave like you are writing the constitution. So suppose if you are behaving like you are writing the constitution, so then what right you want to give to citizen? Of course all rights that meant for the, but what rights you will not give to citizen, there must be limited. Of course article 15, discrimination, to be discriminate, yeah, we discriminate, एंड क्यों ना डिस्क्रिमिनेट का, कहीं लाल किला पे जाएगा, फॉरेनर्स के लिए अलग चार्ज है, इनके लिए अलग चार्ज है, तो डू वी डिस्क्रिमिनेट, या आर्टिकल 15। आर्टिकल 16
इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए. फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू गिव यूपीएससी एग्जाम्पल एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान आई गेस. ओके, सो हर किसी को नहीं अलाउड है. तो इस तरह से करके हम लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो एसेंस आप जानिएगा तो आप देख लीजिएगा एक यूएस सिटीज़न आकर के यहाँ एग्ज़ाम दे, नहीं ना होगा, हमारा पूरा जो फैब्रिक है वो गड़बड़ा जाएगा. ओके, ठीक है. चलो, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन. ओके, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर व्यूज लाइक फार्म प्रोटेस्ट, इस तरह से वो नहीं कर सकते. ठीक है. आर्टिकल 29, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज होना ही चाहिए. आप बताइए क्यों नहीं होना चाहिए. वो आकर यहाँ कहने लगेंगे कि वाई देयर इज नॉट अ चर्च, आई वॉन्ट टू गो टू चर्च. नो, if it is available then fine, but you cannot claim. Okay, it is our citizen who can say. Okay, and article 13 again related to the establishment of minority, it is interest and protection and establishment of minorities institution. Okay, establishment of minority institution, interest of minority, protection of. ठीक है, ये सब राइट हम उन्हें नहीं देते. ओके, चलो नाउ तो अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6. ओके, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड द राइट इनटू 6 पार्ट. ओके, सब्जेक्ट, वेट इसको रब करने दो और मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ. ये तो सही है, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ. सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड राइट्स इनटू 6 टाइप. पहला, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. Okay, B, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22. Okay. C, right against exploitation, article 23 and 24. Okay. D, right to freedom of religion, right to freedom of religion, article 25 to 28. E, A, B, C, D, E, cultural and educational right, cultural and educational right, that is mentioned article 29 and 30. Okay, constitutional remedy, article 32. You can take the screenshot. ये तो बेसिक आपको कहीं भी मिल जाएगा. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ओके, now we will discuss about the doctrine of judicial review and the fundamental right. Okay, so what do you think? Do I need to discuss in this class or should I end the class and discuss in other class? Okay, I think आज के लिए इतना बहुत है. That is sufficient for today. Okay, so जुडिशल रिव्यू पढ़ेंगे अगले क्लास में हम. ओके, कि जुडिशल रिव्यू क्या क्या है और हम वेट नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट जुडिशल रिव्यू. ओके, नॉट ओनली अबाउट जुडिशल रिव्यू. ओके, व्हाट इफ अ राइट इज इंट्रा वॉलेटिंग, एक्स्ट्रा वॉलेटिंग. ओके, इंट्रा वॉलेटिंग, एक्स्ट्रा वॉलेटिंग, इसी को आगे ले जाएंगे. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, लेट्स लुक फॉर द क्रक्स.
आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने सबसे पहले पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि पार्ट 3 जो है कि फंडामेंटल राइट का, दैट टॉक्स अबाउट पार्ट 3 है दैट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट. सो ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट यूएसए में सबसे पहले आया. व्हेन? इन 1789. हाउ? बिकॉज देयर वर 10 अमेंडमेंट्स इन 1791. वहाँ से आया. उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. सो वहीं से आया हमारा फंडामेंटल राइट. ओके. और दे आर नोन एज बेसिक राइट्स. वाई? बिकॉज ऑफ टू रीजन. They give you opportunity to develop yourself in physical, spiritual, and intellectual being, and it is for essential for democracy. So rights are protected by laws. So there are two types of rights: legal and non-legal or moral rights. Legal rights, that is needed for your public legal backing है, enforcement है. Non-legal rights है, private है, no legal backing is there. Okay, grandfather को नमस्ते करना है, ये करना है. Legal rights क्या है? Again, it is divided into two types: constitutional right, that is mentioned in the constitution; non-constitutional right, that are not mentioned in the constitution. Okay, but they are in conform with the constitution. Okay, they are also known as extra constitutional. I gave the example of COVID protocol. Then constitutional right, so fundamental right, and Supreme Court has given the responsibility. Then other constitutional right, basically they are statutory right. फिर मैंने कुछ मैन और ह्यूमन के बारे में बचाया. राइट टू स्टेटहुड इज नॉट अ राइट. देन व्हाट इज स्टेट? सो स्टेट इज फंक्शनिंग थ्री स्टेट हैज थ्री फंक्शन: लीगल, फेडरल, एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके. सो लीगल मीन्स सोवरेन बॉडी, फेडरल मीन्स वी ऑलरेडी नो, admin means executive function. So sometimes judiciary also functions as a state. It is sovereign body, federal and executive. Then characteristics of fundamental right. Some are enjoyed by the individual. Okay, characteristic enjoyed by the individual: enforceable, negative obligation, limited power to state, not absolute, restrictive right. On what ground? Sovereignty, integrity, friendly relation, peace, stability. ये 6 तरह का. Enforceable, self-executive fundamental right, like right to equality. Non-self-executive, they are known as incomplete right, like Article 17, right to education. Based on availability, citizens enjoyed or fundamental right, but non-citizen, they do not enjoy Article 15, 16, 17, 19, 29 and 30. Okay, चलो सब्जेक्ट मैटर ये मैंने लिखा दिया. ओके, इसी के साथ हम करते हैं एंड आज के क्लास को. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट